নমস্কাৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ মৰাং মোৰ পিছফালে আপোনালোকে যেটো মানুহৰ ছবি দেখিছে সেই মানুহটো কালিৰ দিনটোলৈকে হয়তো বহু লোকে মানুহটোক স্বৰ্গপ্ৰাপ্তিৰ কামনা কৰিছিল কিন্তু এই মানুহটো এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে হৈ পৰিছে মোষ্ট ওয়ান্টেড কালিৰ দিনটোলৈকে হয়তো বহুতৰে বাবে এই মানুহগৰাকী এগৰাকী মৃত ব্যক্তি আছিল এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে হৈছে মোষ্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি হোৱাৰ উপৰিও এই মানুহজনৰ সন্ধান দিলে 50,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে এই মানুহজন বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহ বিগত প্ৰায় এমাহে অসম আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাৰ লগতে নতুন নতুন নাটকৰ ৰচনা কৰিছে আৰু শেহতীয়া তথ্য কি এই সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড বা সুনীল গগৈ ঘটনাৰ লগত সমগ্ৰ তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰাজ্য কপোৱা সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ সুনীল গগৈ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ঢকুৱাখানাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মৃতদেহটো জাহাংগীৰ হুছেইনৰ আছিল মৃতদেহটো ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটো ডিএনএ পৰীক্ষাৰ তথ্য আহি পৰিছিল সুনীল গগৈৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিব গোচৰ যিগৰাকী ব্যক্তি কিছুদিনৰ আগলৈকে মৃত বুলি ধৰা হৈছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিব এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ বাবে মোষ্ট ওয়ান্টেড হৈছে সুনীল গগৈ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব সুনীল গগৈ পৰিয়াল সুনীলৰ পৰিয়ালক খুদপুছ কৰিব আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ বুধবাৰে এফালে সুনীল গগৈ সন্ধান দিউতাক 50,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে ৰাজ্য কপোৱা সুনীল গগৈ ঘটনাৰ যি ডিএনএ পৰীক্ষা আছিল ডিএনএ পৰীক্ষাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আহি পৰিছে ডিএনএ পৰীক্ষাৰ তথ্যত বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে আৰু এই তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে আসলতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় এই মৃতদেহটো আছিল জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ আৰু এখন পূৰ্ণাংগ নাটক ৰচনা কৰা এখন বৃহৎ নাটক ৰচনা কৰাৰ আঁৰত এগৰাকী ব্যক্তি এইগৰাকী হৈছে সুনীল গগৈ আপোনালোকে যিটো দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিৰ ফটো দেখি আছে সেয়া হৈছে সুনীল গগৈ এই ব্যক্তিজনে নিজকে মৃত সজাই যে বীমা আছিল বীমাৰ টকা আত্মসাৎ কৰাৰ লগতে বীমাৰ টকা তেওঁ নিজৰ নামত পোৱাৰ লগতে বহু ধৰণৰ যি ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ অভিযোগ আছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি কামকাজ আছিল এই কামকাজৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে ব্যক্তিজনে এনেকুৱা এখন ডাঙৰ ৰচনা কৰিলে নাটক ৰচনা কৰিলে যিখন নাটক লৈ এতিয়া অসম আৰক্ষী সৰ্বস্বান্ত হৈ পৰিছিল কিন্তু সদৌ শেষত নাটকৰ যেন অন্ত পৰিবলৈ গৈ আছে কিয়নো আজি বুধবাৰে পুৱা 10 বজাত অৰ্থাৎ কিছু সময় পাছতে সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰ আৰু মাতৃক অসম আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে থানালৈ মাতিছে আৰু থানালৈ মাতিছে খুদপুছ কৰিবৰ কাৰণে আসলতে এই খুদপুছ কৰাৰ মূল কাৰণটো হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে আসলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে এই সুনীল গগৈ ৰচনা কৰা এই বৃহৎ নাটকখনৰ কোন অভিনেতা জড়িত হৈ আছে এই সম্পৰ্কে খুদপুছ কৰিবৰ কাৰণে এবাৰ সুনীল গগৈ পত্নী পুত্ৰ আৰু মাতৃক মাতি পঠিয়াইছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু সুনীল গগৈয়ে যিখন নাটক ৰচনা কৰাৰ পাছতে এতিয়া ডিএনএ তথ্য অহাৰ পাছতে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ঘোষণা কৰিছে মোষ্ট ওয়ান্টেড অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এয়া সুনীল গগৈ আৰু সুনীল গগৈক সন্ধান দিউতাৰ বাবে 50,000 টকা ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে কেনেবাকৈ যদি সুনীল গগৈৰ তথ্য বা সুনীল গগৈ এই যিখন ফটো দেখিছে ফটোখনৰ লগত হুবহু মানুহজন যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে তেন্তে অসম আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক আৰু 50,000 টকা পুৰস্কাৰ আপুনি হয়তো ল'ব পাৰিব যদি তেখেতৰ তথ্য সঠিকভাৱে বা খবৰ আপুনি সঠিকভাৱে দিয়ে এবাৰ আমি আপোনালোকক কালিৰ দিনটোত লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে যি প্ৰেছ মিট দিছিল যি সংবাদমেল দিছিল এই সংবাদমেলৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ য'ত আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা জনাইছে আসলতে কেনেদৰে সুনীল গগৈয়ে আসলে কেনেদৰে এই মৃতদেহটো জাহাংগীৰ আলমৰ হ'ল বা কেনেদৰে সুনীল গগৈয়ে এটা হত্যাকাণ্ডৰ নাটক ৰচনা কৰিছিল এই সম্পৰ্কত আমি পুনে এবাৰ লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ दकुआखाना थाने के अंदर साकुतिया चेतिया गांव में 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 4:30-5 बजे दकुआखाना थाने में एक खबर मिला था कि एक बर्न्ट बिना हेड का एक डेड बॉडी मिला है और इमीडिएटली थाने से दी पुलिस टीम वेंट टू दी स्पॉट
और स्पॉट पे जाते वक्त वहाँ एक दो चप्पल मिला, एक टॉर्च लाइट मिला, एक लाठी मिला और जहाँ वो मॉर्टल रिमेन्स था, बर्न्ट मॉर्टल रिमेन्स था, उसके सामने एक जर्सी मिला। इसके बेसिस पे हमें ये बताया गया कि सुनील गोगोई नाम का एक पर्सन का ये डेड बॉडी है करके उनके घर वालों ने खबर दिया था। जहाँ डेड बॉडी मिला उनका घर से अराउंड 280 to 300 मीटर्स की दूरी में थे। तो बिकॉज डेड बॉडी में हेड नहीं था और वो पूरी तरीके से जला हुआ था, हमने फॉरेंसिक टीम गुवाहाटी का रिक्वेस्ट करके एक FSL टीम आया था गुवाहाटी से, CID से भी एक टीम आया था हेडेड बाय IG CID एंड CID का एक डॉग स्क्वाड का भी एक टीम आया था। इस टाइम हमें ये पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 तारीख सुबह 9 बजे से उनका ही घर में रहते हुए जहांगीर हुसैन करके एक धुबरी का उनका जल जीवन मिशन में जो काम करता था वो एक लेबर मिस्त्री भी गायब था। तो नेक्स्ट डे इवेंट का नेक्स्ट डे DGP सर भी स्पॉट विजिट किए थे। तो उस दिन शाम को फॉरेंसिक टीम के प्रेजेंस में और LMCH का डॉक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी डेड बॉडी का रिमेन्स था, हमें अराउंड 100 बोन्स का टुकड़ा मिला था और उनका जो डेड बॉडी का जो मांस मिला था और बाकी जो भी बोन्स का रिमेन्स मिला था, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और फॉरेंसिकली ये कलेक्ट किया गया था। और कलेक्ट करने के बाद हमारा लीगल प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जिस तरीके से क्राइम सीन था और CID और फॉरेंसिक टीम और DGP सर के विजिट के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। तो हमें ये डाउट आया है कि बॉडी किसका हो सकता है। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका रिमेन्स सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया और उसके साथ DNA मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज DNA रिपोर्ट आया है। DNA रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका DNA जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और काफ़ी उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ों का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लास्ट 1 मंथ में मतलब अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख्स है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला कि जहांगीर हुसैन 29 रात को सुनील गोगोई के घर में ही रुके हुए थे और 30 तारीख को सुनील गोगोई धेमाजी जाने वाले थे और उनको हमें ये बताया गया कि जहांगीर को कहीं रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद जहांगीर उस स्पॉट से गायब है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमें ये पता चला कि जहांगीर जो हमारा क्राइम सीन है अराउंड 6:30 इन द इवनिंग 1 जून को उसी के आसपास कहीं थे, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पता चला था। तो ये सब एनालिसिस के थ्रू हमें यही डाउट था कि सुनील गोगोई का बॉडी ये शायद नहीं है, इसीलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़रूरी था। एंड इसके बाद अभी आज DNA का रिजल्ट जब आ गया, ये अभी निश्चय हुआ है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुनील गोगोई का नहीं है। बिकॉज ये पूरा एक नाटक के तरीके से ये रचाया गया है कि हमें हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक FIR दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है।
तो आज अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस। तो अभी ये नया केस का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज़ बीन अब्सकॉन्डिंग और अभी ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा। उनका जितना भी फैमिली मेम्बर्स है जिसके घर से जहांगीर निरुद्देश हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा। और आज बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था उसे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया है ये एक फॉल्स स्टोरी है एंड बाकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। सुनील गोगोई, उनकी वाइफ और बाकी जो भी अकम्प्लिसेस है उनके अगेंस्ट केस एक रजिस्टर किया जाएगा। आप लोग साथ ये मर्डर का कॉज किया है वो भी आप लोग एनालिसिस किया है, जहांगीर को सुनील गोगोई ने क्यों मारा?